So students, today I am going to explain you EVS chapter 12, our neighborhood. Today we are going to do this chapter. All of you have seen that EVS chapter 12 is our neighborhood. So first of all, if I say what is our neighborhood? Neighborhood है क्या? Neighborhood is our suburban area where we stays and where we live. Suppose हमारे आसपास के इलाके में हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ लोगों से मिलते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? Neighborhood. So first of all, I am going to give you the definition of neighborhood. Pay attention. A neighborhood is an area where a person lives and survives. That's mean what is you can see a neighborhood here. A neighborhood is an area where a person lives and survives. Okay, this is actually is called a neighborhood. So all of you, if you want to write down in your notebook or somewhere also, you may note down also this definition, because I'm going to erase and tell you the next. Now in a neighborhood there are many emphases, there are many instances. तो एक नेबरहुड में जहां हम रहते हैं वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं. ऐसा थोड़ी है कि कोई भी एरिया हम लोग ऐसे ही रह जा रहे हैं. उस एरिया में होता है ना, प्रशासन बोलकर कुछ होता है. देन देयर इज community corporation, then corporation is also there who looks after the safety and cleanliness of the area. So what happens in a neighborhood? What happens? Who look after the neighborhood? Now question 1, who looks after the neighborhood? So who looks after the neighborhood? Who? Municipal corporations. Municipal corporations looks after, municipal corporations look after the नेबरहुड. तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो नेबरहुड है, हमारा जो सबर्बन एरिया है, जो आजू बाजू जितना इलाका है, उसे देखभाल कौन करता है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक्स आफ्टर द नेबरहुड. इज दैट क्लियर? Everybody has understood? Then I am going to erase this and tell you कि how can we keep our neighborhood neat and clean. अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपने नेबरहुड को यानी आस पड़ोस को किस तरीका से साफ और स्वच्छ रख सकते हैं. So pay attention. I'm erasing this. Now I'm going to tell you how can we keep our
neighborhood neat and clean. Now question is, how can we keep our neighborhood neat and clean? So the question is, how can we keep our neighborhood neat and clean? मतलब किस प्रकार से हम लोग अपने नेबरहुड को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं. सो यू सी, वी कैन कीप आवर neighborhood neat and clean by focusing on cleanliness and be a and by being a responsible citizen. तो हम अपने आसपास को साफ रख सकते हैं कैसे? वी कैन कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन बाय फोकसिंग ऑन क्लीनलीनेस, यानी हमें सफाई और स्वच्छ के ऊपर ध्यान देना होगा, और प्लस एंड बाय बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी. ओके, सो we can keep our neighborhood neat and clean by focusing on cleanliness and by being a responsible citizen. तो अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और हम अपने सफाई अभियान को सही तरीके से करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तब हम अपने नेबरहुड को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू से अबाउट 3 R's. अब मैं आपको EVS का 3R के बारे में बताने जा रहा हूं. फोकस ऑन द बोर्ड. Now, what are the 3R's? What are the 3R's? What are the 3R's on environment, in cleanliness, and in recycling anything? What are the 3R's of and cleaning our environment? So, what are the 3R's? What are the 3R's? Huh? In cleaning the
एनवायरनमेंट। सो ये 3R क्या है? ये 3R का मतलब क्या होता है? जो हमें किसी भी एनवायरनमेंट को, किसी भी स्थान को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए क्या है? 3R। These 3R stand for 3 important things. What are those 3 important things? Pay attention. The first R is reduce. The second R is reuse. And the third R is recycle. That means these 3 R's in environment and cleanliness depend on, these 3 R stand for reduce, reuse और recycle. Reduce का मतलब होता है कि जो भी आज एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है, द एनवायरनमेंट विच इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू द ग्रीड ऑफ मैन, हमारे लालचपन के वजह से, अगर हम अपनी जरूरत के चीजों को घटा दें, इफ वी reduced द यूटिलाइजिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। आज के जमाने में एक एक घर पर 4-4, 5-5 फोन हैं, जबकि 2 फोन से काम हो सकता था। किसी के घर में, किसी के पास बहुत पैसा है तो उसके 4 परिवार, उसके घर के 4 सदस्य के परिवार में आपको 5 गाड़ी मिलेगी, जबकि 3 या 2 गाड़ी से काम हो सकता था। तो इन सब चीजों की वजह से फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें बनते हैं, जिसके वजह से फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है, विच एड अप टू द पॉल्यूशन, एडिंग अप टू द पॉल्यूशन। हम अगर ज्यादा चीज यूज करेंगे, ज्यादा चीज प्रयोग करेंगे, तो फैक्ट्री में उतना ही चीज उत्पादन होगा हमारी जरूरत की वजह से, और जितनी चीज फैक्ट्री में बनेंगी उतना ही पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में पैदा होगा और एनवायरनमेंट को दूषित करेगा। द मोर वी यूज, द मोर एनवायरनमेंट, द मोर pollution will be created. The more things we utilize, the more items, the more commodities we will use, so the more pollution will be added in the environment. That is why we have to reduce our use. इसीलिए हम अपने चीजों को घटा सकते हैं। इसीलिए पहला रूल है, we should reduce our necessities. हमें अपनी जरूरत को घटा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। Then reuse. रीयूज का मतलब है हम एक ही चीज को वापस रीयूज कर सकते हैं। जैसे कोई कागज का बक्सा हुआ या कुछ थैला हुआ, उसे ना फेंक कर हम उसे वापस यूज कर सकते हैं कोई सामान रखने के लिए। जैसे हमारा कुछ खाली बोतल का डब्बा है, तो उसे हम फूलों के पानी देने के लिए वो कुछ ऐसे कैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से रीयूज, एक सामान को अगर हम लोग वापस फिर से यूज करें तो नए सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें कोई भी चीज को रीयूज यानी फिर से उसका इस्तेमाल, फिर से इस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज। अब रिसाइकिल, रिसाइकिल का मतलब है जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट मीन जिसे एनवायरनमेंट में फिर से बनाया जा सकता है, ऐसे पदार्थों का हमें यूज करना चाहिए और उसी को रिसाइकिल करके वापस यूज करना चाहिए। जैसे शीशा होता है, ग्लासेस होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, इसे खत्म किया नहीं जा सकता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे वापस इन चीजों से नई वस्तुएं बना सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिसाइकिल। तो आई होप अंडरस्टूड, आई होप you have understood that what are the 3 R's in cleaning the environment. The 3 R's are reduce, हम अपने जरूरत को कम कर दें, रीयूज, एक ही वस्तुओं को बार बार यूज करें, और रिसाइकिल, एक ही चीज को हम उसका रूप बदलकर किसी और रूप में बदलकर इस्तेमाल करें। तो एनीवे स्टूडेंट, दिस वाज ऑल। आई विल टीच यू मोर इन माय नेक्स्ट वीडियो। So I hope
you have understood this our neighborhood. Whatever I have taught you, I will teach you more. So just I'm ending my class here. Goodbye. See you again.